Assalamu alaikum, good evening, everyone, and welcome to another inspiring session of Alumni Stories. Amal Stories Alumni Connect session is an initiative designed to bring Amal Academy and alumni together to share their professional journeys, professional personal growth, valuable experiences. These sessions serve as a platform to inspire, connect, and guide both current fellows and other alumni by showcasing the diverse path our graduates have taken since completing the Amal Career Prep Fellowship. The goal of Amal Stories is not just to celebrate success, but to foster a supportive community where alumni can learn from each other, exchange ideas, and find motivation to pursue their goals with confidence. I'm Adnan Tariq, and today we have the honor of welcoming an Amal alumni whose journey is a powerful example of perseverance, dedication, and life changing impact of seizing the right opportunities. Sadia Sohail's story is one of resilience transformation, and we're thrilled to have her here. And instead of me telling her story, I'll take the stage and I'll let her take the stage and walk us through incredible journey herself. So Sadia, welcome to Amal Stories Alumni Connect series, and thank you for being here today. To start, could you please share a little about your background and what so let's begin with the background and then take it organically from there. Like to say thanks. Sadia, we cannot hear you. I hope I'm audible now. Yes, you are. First of all, I would like to say thanks, sir, for the invitation. I'm honored to get reconnected with Amal family. Again, it always feels so good to get connected with the people here. And I would like to mention that Saradran Tariq was the one who took my interview to get into the fellowship. And again, today he's the one taking my interview and asking me about my journey. So, first of all, thank you so much to the whole Amal team. So, if I talk about my background, so I would like to shed light on my educational background. So, I am a graduate of Food Sciences and Technology from Karachi University, and I completed my Amal Fellowship while I was in third year of my degree. And right now, I'm serving as an HR executive in Shahi Foods. It's been almost 1 year, but during that span of time, I had also worked for QCS Global as a project coordinator. That was a contractual job. And I had also worked for a Canadian company on remote basis. That was also a contractual job. And there I had worked as an HR specialist, working with them for the period of 10 months. That's awesome, Sadia. Thank you for sharing that and welcome back. Well, that was a surprise for me as well, and thank you for reminding that I conducted your interview while you were getting into the fellowship. Okay. So, you're coming from a diverse place, diverse experience with a lot of experience in HR, right? So I would love to know that what inspired you to begin your journey in HR. सर आई वुड लाइक टू लाइट मतलब मैं थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करना चाहूंगी while I was in my third year और मैंने फेलोशिप का इंटरव्यू दिया था। आपने भी मुझसे उस वक्त ये सवाल पूछा था कि फेलोशिप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि मुझे अपने करियर की डायरेक्शन नहीं पता। आई एम सो अनलकी दैट आई हैव come into third year of my degree and yet I have no roadmap. तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो अमल से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि वंस आई वाज डन विद अ फेलोशिप सो आई हैड अ क्लियर पाथवे बिफोर मी दैट आई हैव टू फॉलो दिस एंड आई एम सरप्राइज दैट मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आती चली गई और मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया। मेरी फर्स्ट जॉब जो हुई आफ्टर फेलोशिप जो हुई वो भी फेलोशिप की वजह से ही हुई थी बिकॉज ड्यूरिंग फेलोशिप आई वाज ब्रांडिंग ऑल माय लर्निंग्स ऑन लिंक्डइन, due to which I was getting noticed by the people on LinkedIn, and then they offered me a job. That was of my first job as a project coordinator. देन उसके बाद हमारे एजुकेशनल करियर में एक चीज़ होती है जिसको इंटर्नशिप कहते हैं, वो करनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज यू डोंट गेट अ डिग्री। सो आई वाज एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड टू योर सरप्राइज आई डिडंट फेल वंस, आई डिडंट फेल ट्वाइस, I failed 25 times.
I am stressing this. I've failed 25 times. Shahi was on 26th number when I applied for internship and I got selected. That was a beautiful moment for me and I believe कि मैंने अमल की सारी टीम to get that internship. So this is how I got there. मैं इस तरीके से corporate sector में आई and it was like first time for me to get into a professional thing. मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी मैंने एचआर में अपना करियर एक तरीके से स्टार्ट किया था एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वाज डन विद माय डिग्री सो शाही ऑफर्ड मी अ जॉब and you would be surprised that like while I was giving my final exams of my bachelor's degree so I was thinking कि यार अभी तो मुझे एक रगड़ा और खाना पड़ेगा एक रगड़ा अभी और लगेगा जॉब ढूंढनी पड़ेगी निकलना पड़ेगा पता नहीं क्या क्या होगा बट डेफिनेटली अल्लाह पाक हैड बेटर प्लान्स एंड व्हेन आप वो वाली बात है आप जब बीज बोते हैं तो उसके फ्रूट्स भी आपको मिलते हैं तो मैं कुछ मंथ्स पहले जो इंटर्नशिप कर चुकी थी उसने मेरे लिए इतनी आसानी कर दी थी कि they offered me a job and within just 2 days of my completion of exams I was sitting in Shahi as an HR executive. Wow, that's really amazing. And it's I think you already had done your homework very well, and it's because of that, the experience that you get, like that you gained during the process, like you mentioned that not one, not two, but 25 rejections, and then 26th one was the one that landed you. So I think that experience, that whole experience actually was the guiding star for you. So super, really proud of you and where you have come so far. So, we'll be focusing now on your current role, Sadia. That what is one thing that really excites you about your current role, about being in HR? Being in HR I feel कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छे से फिट हो रही हूँ अब मैं जो ये बात कह रही हूँ मैं जरा इसको रिकनेक्ट कर देती हूँ आई हैड डन माई स्पेशलाइजेशन इन ऑडिटिंग हमारी जो एजुकेशनल फील्ड थी फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की उसमें फर्दर स्पेशलाइजेशंस थी तो मैंने तकरीबन 5 से 6 सर्टिफिकेशंस कर ली थी ऑडिटिंग की बिकॉज आई वांटेड टू गो इन द ऑडिटिंग साइड लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि मैं पर्सनैलिटी वाइज इसमें फिट नहीं कर सकूंगी जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आई जब मैंने रिमोट जॉब करना स्टार्ट करी एचआर की कैनेडियन कंपनी में और जब मैंने एचआर की इंटर्नशिप करी शाही में सो आई रियलाइज दैट आई एम बॉर्न टू बी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर and you know when you are fitting on personality basis ना so you start to enjoy that thing फिर आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज होती है वो भी आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो आप अच्छे से उसके अंदर फिट हो रहे होते हैं जो भी आपकी लर्निंग्स होती हैं आप उनके जरिए अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं आपका काम अच्छे से हो रहा होता है एंड व्हेन यू नो जब आपका काम अच्छे से हो रहा होता है आपके टारगेट्स अच्छे से अचीव हो रहे होते हैं सो यू ऑटोमेटिकली एंजॉय योर रोल सो फॉर मी लाइक इट्स बीन 1 ईयर मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऑफिस जाते हुए ये सोचूं कि क्यों ऑफिस जाना है यू नो आई फील वेरी हैप्पी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ जब मैं ऑफिस जा रही होती हूँ मैं उस वक्त भी बहुत खुश होती हूँ जब मैं ऑफिस से आती हूँ सो आई ऑल्सो फील हैप्पी बिकॉज यू नो आई गो समवेयर जहाँ पे मैं इंजॉय करती हूँ और मैं इंजॉय इसीलिए करती हूँ बिकॉज वहाँ पे मैं फिट इन हो रही हूँ नॉट अबाउट द प्लेस it's about the role I am in it's about the field I am in. That's amazing. And Sadia, so if we take a step forward, to where you totally enjoy the role as well, and the HR work involves, facilitating human resources and working accordingly. So, obviously, that role also comes with some challenges. So, can you please briefly talk about one or two challenges that you face in your current role? सर चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ के मेरा इस वक्त मेजर कमांड है वो हायरिंग की तरफ है मैंने 1 ईयर में 12 हायरिंग्स करी हैं और जब मैंने आई एम द पायनियर ऑफ दिस थिंग कि शाही में मैंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि लिंक्डइन के जरिए हम हायरिंग कर सकते हैं रादर देन गोइंग टू द एचआर एजेंसीज एंड स्पेंडिंग यू नो money there so why not to save our money and being efficient in utilizing the sources we have तो सर जब हम एड पोस्ट करते हैं उसके पास जब मेरे पास सीवीज आती हैं सो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु रिव्यू द सीवीज एंड डू द सॉर्टिंग एज पर द टीचिंग्स ऑफ अमल मुझे बड़ी आसानी हो जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ सीवी मैच करने में
मुझे जो एक सबसे बड़ा चैलेंज लगता है ना, वो ये लगता है कि मेरे पास 100 सीवीज होती हैं, तो उसमें से हार्डली 7 से 8 सीवीज होती हैं जो कि मैं सॉर्ट करके दे रही होती हूँ। दिस इज नॉट व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट के जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ जो मैचिंग होती है, वो सीवीज मैं दे देती हूँ सॉर्ट करके। मेरे लिए ये इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये काम कर रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है दिस इज माई इनएफिशिएंसी। प्रॉब्लम इज दैट कि सीवी अलाइन नहीं कर रही जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। 100 सीवीज आ रही हैं और उसमें से अलाइन सिर्फ 6 से 7 सीवीज कर रही हैं। दिस इज समथिंग, यू नो, वेरी ट्रेजिक, वेरी पथेटिक। कि समटाइम्स आई गेट ट्रिगर्ड कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। समटाइम्स आई हैव टू पुट द एड, दैट जॉब पोस्ट 2 टाइम्स। एक दफा लगाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर लगाते हैं कि शायद अब की बार अच्छी सीवीज आए। तो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी। Secondly, corporate sector is not that easy. Everyone out there who is listening to me, I'm telling you, you have to be emotionally very strong to fit into the corporate sector. Nobody is your enemy, but still आपने अपने इमोशनली खुद को इतना स्ट्रांग रखना है कि छोटी सी छोटी बात पे आपकी आंखों से आंसू ना निकले। आपने, अब जब आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, सो यू कैन हैंडल दैट। कॉर्पोरेट सेक्टर में आए दिन के चैलेंजेस होते हैं। 9 to 5 में आपको 100 तरह के चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। बॉस के मूड भी देखना पड़ता है, डायरेक्टर के का मूड भी आपने कंसिडर करना कि भाई ये चीज़ है, क्या चीज़ है। आपके अपने काम होते हैं। इमोशनली खुद को स्ट्रांग रखें, अपना मैक्सिमम दें। उसके बाद थिंग्स गेट इजियर विद टाइम। Wow, that was really powerful, Sadia, and definitely we'll unpack some of the recommendations that you will have for our current and obviously all everyone else who is watching this conversation later on. Okay, how can the fellows incorporate the learnings directly from HR, ताकि they can land into their dream job. So, for now, we are going to take a step back and talk about your professional journey. Like initially, when you were introducing yourself, you clearly mentioned that there was a time when you were quite not clear about which area to choose, where to come. And even if we talk about the career clarity, generally, that students do not have that kind of direction. They are ambitious about different career paths, but unfortunately, they do not know where to begin. So, if we can relate it to your story, that when you were graduating, did you know that this is the field that where you want to be, and what was finding your journey, finding your niche like? Yes, by the time I was graduating, so I was very clear that I have to go into the HR field. And though I had received a lot of criticism, people telling me कि 4 साल graduation food sciences में कर ली, फिर specialization auditing में कर ली, जा HR में रही हैं। तो but I was like कि oh, it's okay, it's my choice. If I'm taking a new turn, that's completely okay. और जो नॉलेज मेरे पास है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी जो 4 साल की नॉलेज है, मेरी स्पेशलाइजेशन की नॉलेज है, आज भी मैं 4 लोगों में बैठती हूँ, सो आई कैन टॉक कॉन्फिडेंटली अबाउट इट। सो दैट्स व्हाट समथिंग इज। बाकी प्रोफेशनल जर्नी की बात करें तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन आउट देयर, प्रोफेशनल जर्नी का स्टार्ट बैचलर्स की डिग्री के बाद नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल जर्नी का स्टार्ट आपके 3rd ईयर में ही हो जाना चाहिए। इफ यू आर नॉट साउंड इनफ टू रियलाइज दिस थिंग, देन आई एम नथिंग बट फील सॉरी फॉर यू। आपको 3rd ईयर में अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है दैट नाउ यू हैव टू वॉक ऑन द प्रोफेशनल पाथवे। आपने खुद से रिसर्च करना स्टार्ट करनी है। In 3rd ईयर आई वॉज इन अ सीवियर डिप्रेशन, रियलाइजिंग कि आई हैव नो पाथवे। मैंने इसीलिए अमल में मैं आई थी कि मुझे एक, अपने सामने एक रोड मैप तो मिले, मुझे पता तो हो मैंने किस चीज़ के ऊपर चलना है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने के लिए रोड मैप का होना ज़रूरी है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल लाइफ, सो आई फील रियली वेरी ब्लेस्ड कि आई हैड अ रोड मैप। तो रोड मैप का जो फॉर्मिंग थी वो 3rd और 4th ईयर में हो चुकी थी। तो जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो आई हैड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियर फॉर मी, बट उसके लिए मैंने पहले से ही वर्किंग करना स्टार्ट कर दी थी। फॉर मी माई 4th ईयर, दैट इज द लास्ट ईयर ऑफ माई डिग्री, वॉज वेरी टफ बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद अ कैनेडियन कंपनी on remote basis as an HR specialist. I was doing my internship in Shahi. I was completing my final year project. That was very tough. But with the times it becomes easy when you start to achieve your milestones. Very true. And Sadia, probably that was also the time when you were enrolled in Amal Career Prep Fellowship, right? Yes, It yes. was during that timeline. So, Uh, mm. yeah.
So we would love to know that while you were working with, doing that internship and obviously involved in your academic coursework as well, how were you managing all of this single-handedly and then, mashallah, acing it throughout? Management all comes with the techniques. Sadia, were you able to hear me? Yes, yeah, I did hear you. So management comes with all the techniques that we had, learned at Amal, as in hover metrics, time management. It feels very nice कि मैं फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप मुझसे पूछें कि भाई आप ये वाला काम कब कर रही है, मैं आपसे कहूँ कि नहीं अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है. But it sounds very professional when I say, according to Eisenhower matrix, this lies in quadrant 4, and I am going to delete it. So this sounds very professional. So this was my approach. I used to think that what are the tasks that are important and urgent, what are the tasks that are important but not urgent, that are the few tasks that I need to delete that are neither important nor urgent. How I divided my time. There is no doubt. For me, I felt like time is running, time is slipping out of my hand. Why I felt lucky was the fact that I had prioritized my tasks, that I have to do this, I have to do this. And while I was going, when you are on a specific route, ना, तो automatically आपके tasks खुद ही align होते चले जाते हैं. I was Mm-hmm. very much tense. मैं कैसे अपने इंटर्न को जॉब के साथ अलाइन करूंगी, जॉब भी है, इंटर्नशिप भी करनी है, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी करना है. बट इट वेंट वेरी स्मूथ. बाय बिकॉज मैंने अपने टास्क को खुद प्रायोरिटाइज किया था. तो अमल में जो हमने लर्निंग्स की थी, इट्स वाज नॉट अबाउट कि आप सैटरडे संडे आए, लर्निंग करें और वापस चले जाएं. उसका फायदा तभी होगा जब आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे, उसको अपने साथ हमेशा रखेंगे. मेरी एक नोटबुक थी, उसमें मैं नोट्स बनाती थी अमल में. वो नोटबुक मेरे पास आज तक है. मैं उसको अभी भी आज भी सुबह खोल के देख रही थी, इसमें मैंने नोट मेकिंग की हुई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थी. तो इट वाज नॉट अबाउट कि आपने बस नोट मेकिंग करी, उस बुक को बंद किया. और ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए. मेरी फैब 2023 में फेलोशिप कंप्लीट हो गई थी. आई वाज इन द विंटर बैच ऑफ 2022. तो उन लर्निंग्स को नहीं हमने बंद करके रखना होता, लर्निंग्स को एग्जीक्यूट करना होता है. Mm-hmm. तो दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट. That's amazing. And while Amal Career Prep Fellowship was just one step that you took for your professional development, we would also love to know that what other initiatives that you enrolled in, like did you go for any technical courses, any other certifications related to your technical field area that helped you to reach where you are right now? Sir, I must say कि while I had done my fellowship, so I had to make two parts, what I want to do and what I did not want to do. जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब मैं अपनी फेलोशिप कर रही थी, उस वक्त तक भी मेरे जहन में यही बात थी कि मैंने ऑडिटिंग में अपना करियर बनाना है. तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड डन दो सर्टिफिकेशंस दैट आर रेलिवेंट टू ऑडिटिंग. तो जितनी भी Okay. हमारी ऑडिटिंग की सर्टिफिकेशन थी, तकरीबन 5 से 6 सर्टिफिकेशन थी, वो मैंने पूरी कंप्लीट करी थी एट दैट टाइम. डेफिनेटली मैं उसमें अपना करियर परस्यू नहीं कर सकी. अगर आज मैं एचआर में एक्सेल कर रही हूँ, तो एचआर में एक्सेल करने के लिए मैंने अपनी लर्निंग्स को खुद मैक्सिमाइज किया है. इट्स नॉट अबाउट कि मैं जस्ट रोज ऑफिस जाती हूँ, अपना लैपटॉप खोला, रूटीन टास्क किया, मैं आ गई. आई मेक श्योर कि आई शुड डाइव इनटू समथिंग न्यू, आई शुड लर्न समथिंग. एंड लर्निंग इज लिमिटेड. इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी एकेडमी में इनरोल होंगी, मुझे वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, ओनली देन आई कैन प्रूव द वर्ल्ड कि आई एम लर्निंग. नो, Mm-hmm. इट्स ऑल अबाउट कि आप वर्क कैसे कर रहे हैं. तो आई मेक श्योर कि जितने भी हमारी फील्ड से रेलिवेंट, एचआर से रेलिवेंट आर्टिकल्स आते हैं, सर्च आती है, कोई न्यू ट्रेंड आता है, सो आई Yeah. मेक श्योर टू ग्रैब इट ऑन फर्स्ट बेसिस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे का इनिशिएटिव लॉन्च किया है. तो उसके लिए ऑब्वियसली आई हैड टेकन अ टाइम टू स्टडी. तो उसके लिए मैंने स्टडी किया, देखा, और Mm-hmm. ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कर रही हैं, क्या तरीके कार यूज होता है. हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें रिसर्च वर्क होता है, हमें बहुत देखना पड़ता है, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस हमें बहुत देखनी पड़ती है, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव इन एचआर. सो दैट्स थिंग. तो हमारी फील्ड में सर टेक्निकल से ज्यादा ना थोड़ी सी ये सॉफ्ट स्किल्स और ये बेसिक चीजें हैं जिनको हमें ग्रैप करना होता है. बाकी फेलोशिप के बाद मैं इतनी ज़्यादा फेलोशिप से इंस्पायर्ड थी, मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं एक और फेलोशिप में इनरोल हो जाऊं. मैंने क्या करा कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने टीचर पाकिस्तान में अप्लाई कर दिया, और तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया. बट द डे इट वाज माय इंटरव्यू, आई आस्क्ड माय सेल्फ, इज दिस समथिंग आई वांट टू डू?
क्या मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं टीचिंग लाइन की तरफ चली जाऊं? मतलब ये हम्म तो बिल्कुल ही आउट हो जाता। तो हम्म देयर वर सम पीपल हु सेड टू मी कि चली जाओ, पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैंने कहा यार, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। ठीक या है, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, वर्किंग आवर्स बहुत अच्छे हैं, बट मेरे अंदर वो ट्रेड्स नहीं है कि मैं टीचिंग लाइन में परमानेंटली चली जाऊं। छोटे हम्म बच्चों के साथ डील करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आई बैक्ड ऑफ एट वेरी लास्ट स्टेज, बट दिस इज वॉज समथिंग आई डेड। एंड आई एम हम्म सरप्राइज्ड, आई वॉज ऑनर्ड कि कराची से एक तो हमारे पास कैंडिडेट सिर्फ 4 थे जिन्होंने टीच फॉर पाकिस्तान में अप्लाई किया था, एंड फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी आई वॉज द ओनली वन। तो हम्म मुझे बड़ा ऑनर फील हो रहा था कि मैं इस प्रोग्राम में जाऊंगी, बट स्टिल आई बैक्ड ऑफ बिकॉज वो मेरे गोल से कहीं भी अलाइन नहीं कर रहा था। Right. Sadia, thank you for sharing that. And another learning that we can take from this experience is that this experience in itself was a great learning experience. It taught you, how to excel, how to appear for an interview, and then, you made it to the final stages. That means you were doing something right. So, and again, questioning yourself, having a self-realization that is this something that I really want to do, right? Questioning yourself, self-reflection is again super important. So yeah, now I'll move to your professional journey. Professional journey में being in HR, being a woman, the journey has been like, so far what I'm hearing, that it has been very great and has been very rewarding, but I'm sure that there must be some challenges as well that you have faced while working in this field. So we would really like to know any challenge that you would like to share with all of us. जी, बहुत थोड़ा सा देसी टाइप हो जाएगा, बट स्टिल आई वुड शेयर। जब मैंने अभी रिसेंट थोड़े टाइम पहले ही जो है ना ये चीज करी, मैंने कहा पता नहीं क्यों ऑर्गेनाइजेशन पे एचआर करती है कि हम सबको खुश। तो मैंने personally Sadia, किया। sorry to interrupt you. Can you adjust your mic a little? नाउ एम आई Yes, ऑडिबल? yes, it's fine. ओके, सो आई वाज सेइंग कि थोड़ा सा देसी टच हो जाएगा, बट स्टिल आई वुड से कि ना, मतलब मैं अभी थोड़े टाइम पहले अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में बैठी थी, एंड आई वाज टेलिंग देम कि पता नहीं क्यों एचआर से सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने सबको खुश रखना है। पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है यार, मैं एचआर में काम करती हूँ, मैं इस ऑफिस की बहू नहीं हूँ छोटी जिससे सब एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं सबको खुश रखूंगी, मैं सबका ख्याल रखूंगी। तो इस चीज ने मुझे बहुत ट्रिगर किया। वी आर इन एचआर, तो हमें सबके साथ बहुत अच्छे से चलना पड़ता है। एक बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप पर्सनल लाइफ फॉलो ऑफ हो रही है, लेकिन आप इस रोल में आते हैं तो यू हैव टू एक्ट लाइक यू आर टोटली परफेक्ट, आपकी लाइफ में तो कुछ बुरा है ही नहीं, या आपको तो कोई चैलेंज देखने को मिल ही नहीं रहा। तो दैट्स द थिंग, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वेमेन के लिए वाकई में स्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो वुमेन वुमेन कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत है, वो तो बहुत ज्यादा ही है, और वुमेन मैन कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। बट स्टिल अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं, एंड यू आर नॉट टेकिंग एवरीथिंग इमोशनली, सो यू कैन देन इजीली स्टे इन दिस। Right. And you covered it very well. And while you talked about the challenges, you also like highlighted some of the aspects which serves the purpose. So, moving forward, as someone who has an experience in HR, a lot of experience coming from that. So earlier you were also sharing some recommendations from resume perspective, from how to work in corporate sector, इमोशनल एस्पेक्ट पर भी आपने एक थोड़ा सा टच किया था. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम दैट you share के what would be your recommendation to those fresh graduates who are out there planning to apply for the jobs as they will be graduating. I must say, you start investing in your soft skills if you want to come in corporate sector. Corporate sector की कोई भी field हो, either it's human resources, marketing, finance, whatever, you have to work on your soft skills. मैं एक बात बता दूं, सीवी में हम सिर्फ आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, जो इंटरव्यू होता है उसमें आपका बिहेवियर देखा जाता है। हम बहुत सारे आपके बिहेवियर एक्सपेक्ट नोटिस कर रहे होते हैं। तो दिस इज द थिंग। सेकेंडली, सीवी बना रहे हैं तो काइंडली उसको एक अच्छे फॉर्मेट पे बनाएं, ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। कलरफुल सीवीज मत लेकर आएं।
थर्डली, या सीवी को अपने नाम से भेजा करें। हम एचआर वाले हैं, हमारे पर थोड़ा सा रहम किया करें। हमारे पास इतनी सीवीज आती हैं, और यकीन करें सीवीज के नेम होते हैं CV 1 2 3 4, रिज्यूमे 3 2 1। एंड उसको मैं खुद बैठ के रीनेमिंग कर रही होती हूँ, बिकॉज मुझे आगे जब डायरेक्टर को भेजनी है, सो डायरेक्टर विल आस्क मी ये कैसी सीवी आ रही है, तो आई डू दिस ऑन माई बिहाफ। So for all the fresh graduates, I must say, start investing in your CV, start investing in your cover letters, try to understand the job description. You know, HR में भी बहुत सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस अलग हो सकती हैं। मैं अपनी एक सीवी बना के पूरी जगह उसको यूज नहीं कर सकती। बहुत डिफरेंस होता है, कहीं पे HR पेरोल के लिए चाहिए, कहीं पे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के लिए चाहिए, कहीं एक जनरल वर्कर के तौर पे चाहिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर। डिग्री आप सब एक ही हासिल करके निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में आउटशाइन करने के लिए थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करें। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लिंक्डइन पे अपनी ब्रांडिंग करें। लिंक्डइन इज अ वेरी गुड रिसोर्स दैट वी हैव। वी आर जस्ट लाइक कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। जितना टाइम इंस्टा पे लगाते हैं, उससे मैं कहती हूँ माइनस करके जो है लिंक्डइन पे लगा लें। दैट वुड बी वेरी ग्रेट इनफ। तो बहुत, क्योंकि लिंक्डइन से मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है, मेरी नेटवर्किंग बहुत बढ़ गई है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि रिसेंटली अभी कराची यूनिवर्सिटी में आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट। तो देयर वर मेनी पीपल हु वर कमिंग टू मीट मी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं तो इनको नहीं जानती। वो लोग मुझे आगे से बता रहे थे हम आपको लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं, इसलिए हम आपको जानते हैं। This is how you have to make your PR. So try to focus on these things. Inshallah, everything will be very easy. That's amazing, and these are really very powerful points. And I am sure that all the audience, all the people who are watching us right now, they have all, especially the fellows and alumni who are planning to apply for jobs, they have taken notes because these are really valuable points. And Sadia, I'll bring an end to this conversation. Okay, obviously, as a lot of alumni are watching this conversation, this discussion, a lot of current fellows are also watching you live. So, any advice that you have for our current fellows who are enrolled in this Amal Career Prep Fellowship, what would you tell them? ओके, सो अगेन द एडवाइस आई वुड से कि आप लोग जो फेलोशिप में लर्निंग्स कर रहे हैं, प्लीज़ उसको बुक में बंद करके मत रखिएगा। उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। फेलोशिप के बाद उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड यू विल रियलाइज़ कि आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। मैं एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी मेंशन करूँगी। हमने अमल में सीखा था नेटवर्किंग करनी है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे 1 डे के नोटिस पर हायरिंग करनी थी, and I did it with the help of networking. You know, networking is helpful not only for the employee, not only for the candidate, but also the employer side as well. Employers भी चाहते हैं networking के जरिए काम हो जाए, तो अपनी networking को strong करें। अमल में जितनी चीजें सीख रहे हैं ना, फेलोशिप के बाद एक बार उनको वापस से खोल के देखिएगा कि क्या क्या सीखा, और आप उसको कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे तो उसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपका जो भी रोल है आप उसमें उसको एग्जीक्यूट करें। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कनेक्शंस बनाएं, ब्रांडिंग करें, और जो है यू you नो know, ये जो है ना, हमारे जो जहनों में केज बना हुआ है ना, इस केज को तोड़ें। यू नो, देयर इज अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज, इवन मोर देन यू कैन थिंक। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हम सब उसमें कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं। Wow. That's again amazing. And with that, Sadia, thank you so much for sharing this piece of advice, and most importantly, being here talking about your experiences and your overall journey as well. So, I would like to close this conversation and would like to thank you for being here and being this inspiring for everyone out there. Thank you so much, sir, for the invitation. I always feel very healthy and very happy to get connected with any person who is from Amal, and Mhm. especially with you, because you were the one who shortlisted me, I must say. And thank you so much again. Thanks to the audience who had listened to us. And I'm always available on LinkedIn. If any of the fellow, if any person wants to take any help from me, I'm always there. Mhm. So thank you so Thank you. much, Sadia, and really proud of where you have come, and inshallah wishing more success for you. And as I bring this conversation to close, I also want to take a moment to reflect on incredible insights that were shared today. And Sadia, your journey has been a totally testament to the power of resilience, vision, and the willingness to adapt.
So I must say that from navigating challenges at your workplace to working with a lot of people, your story reminds us that the impact one individual can make on someone's life when they pursue their passion with a purpose. So, to our audience today, I hope that this session has left you with valuable lessons, great insights, and a renewed sense of motivation coming directly from someone who is working in HR. And whether it's starting your own venture, guiding others, or even pursuing your goals, remember that every challenge is an opportunity to grow. And finally, thank you, Sadia, again for sharing your story and wisdom with us, and to everyone who was a part of this meaningful discussion. And let's carry this energy of the session forward as we continue to learn and support one another. So, see you in the next Alumni Connect session. And until then, stay inspired and keep striving. Thank you, everyone, for joining. Thank you. Bye. Thank you. Bye.